नहीं। नेहा मैम, अगर कोई रिकॉर्डिंग में इशू हुआ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अभी मैं देखा, चेक किया, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके सचिन सर, थैंक यू। तो सबने ज्वाइन कर लिया मैम? सभी ने अपने हाँ नाम जी मेंशन मैम। कर दिए हैं क्या चैट ग्रुप में? हाँ जी मैम। ओके, यस प्लीज स्टार्ट मैम। आई कैन सी ओनली 4 to 5 नेम्स। रेस्ट प्लीज मेंशन देयर नेम्स। प्लीज नेम मेंशन कर दीजिए। नेहा मैम, मैंने ज्वाइन किया हुआ पर मेरी चैट में से नेम टाइप नहीं हो पा रहा। नो इशू पूनम मैम, कोऑर्डिनेटर्स प्लीज मेंशन कर दीजिए नेम अपने। Still, I can see Narinder sir is here, Nancy ma'am is here, but nobody is mentioning their name in the chat group. Please mention your names. I am repeating again. Poonam ma'am, please start. ओके, सो आज का अपना ਜਿਹੜਾ टॉपिक हैगा वो है अंडरस्टैंडिंग द टारगेट्स एंड मेकिंग एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्लान फॉर द ओटी। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू आस्क कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? फर्स्ट ऑफ ऑल एनीबॉडी दैट कोई आंसर करना चाहे क्वेश्चन? नरेंद्र सर, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द टारगेट कि ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ? नरेंद्र सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी मैम। आई गेस नरेंद्र सर रिप्लाई नहीं कर रहे थे इस चीज का। हेलो। हाँ जी सर। जी। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। जी जी मैम। हाँ जी मैम, रिपीट करना मैम, एक मिनट, एक्चुअली पहले ना डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे से। ओके ओके, ठीक है सर। सर मेरा क्वेश्चन ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਓਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ जी ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ मैम। जी ਲੱਗਦਾ? जी जी। हाँ जी मैम, जैसे बच्चे ने इंस्पैक्ट किया मैम, फॉर्म डील उसका टेस्ट किया मैम, उसके अकॉर्डिंगली जेकर अगर बच्चा हाइपर है। हेलो। जी जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी जी मैम, अगर बच्चा ज्यादा हाइपर है तो उसके हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए जैसे हम अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू प्लान बनाते हैं मैम। जैसे आप उसको डीप प्रेशर देते हैं मैम। ओके, ठीक है। या सो एग्जैक्टली लाइक दैट ਓਨਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਓਟੀ ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ OT ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਲੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ ਫॉर ਆਲ, ਸੋ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ADL ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। I guess this is clear है ना कि कोई क्वेश्चन हो इस चीज के रिगार्डिंग तो you can ask. Okay, so moving further, yes, नो मैम कोई okay, क्वेश्चन नहीं। okay, ठीक है मैम। So moving, काइंडली सभी अपने ना एक्चुअली ना मैम कैमरास आज ओपन कर लें प्लीज। कैमरास ओपन कर ले, जी मैंने मैम लास्ट टाइम मैम भी इसमें बोला ना था। डिफिकल्टी आ रही है मैम आज जो आपने ये लिंक भेजा है। क्या डिफिकल्टी आ रही है सर इसमें? जैसे पहले जूम में था ना वो इजी लग रहा था, पता नहीं मैम आज हो सकता है मेरे फोन पे ही हो मैम। सारे नु आवाज क्लियर आ रही है अपन? जी मैम हाँ जी आवाज क्लियर आ रही है मैम। प्लीज जिन्होंने कैमरास ऑन नहीं किए वो कैमरास ऑन कर लो अपने। ओके, सो मूविंग फर्दर कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਸੋ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨੈਂਸੀ ਮੈਮ, ਫਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ OT ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੇ ਰੋਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੇ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। anybody would like to add on something in it? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੇਪ ਆਫ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਪ ਆਫ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਜ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਪ ਅਪਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੌਪਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ Yeah, so these are the only basic activities ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਸੁਮਨ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਟਾਇਰ ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟਾਇਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਟਾਇਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਟਸ ਵੀ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਗਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਅਰਸ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਨ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਟਾਇਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਟਾਇਰ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ
we can start with the smaller ਜਿਹੜੀ small weights ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ small tire ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ start ਕਰਵਾ ਕੇ then we will move towards the ਜ਼ਿਆਦਾ heavy ਵਾਲੇ weights ਜਾਂ heavy ਵਾਲਾ tire ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ stairs up and down ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ chairs up and down ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ small ਤੋਂ start ਹੋ ਕੇ then we will move towards the higher one ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਬਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਹੈਂਡਲ ਦੈਟ ਪੂਨਮ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਹੈਂਡਲ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਂਟਰਮਸ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਿਊ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਰੈਪੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਪਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਨ ਸਟੈਪ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੀਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡੀਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਨੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਸੀਵੀਅਰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੰਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੈਂਸਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰਲੀ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ या एग्जैक्टली ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਈਪਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡੀਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਡੀਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਬਸ ਉਹੀ ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਓਟੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ नो मैम भेजा नहीं मैं 1 मिनट चेक कर ਮੈਮ 1 ਮਿੰਟ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ठीक है मैम जस्ट वेट rest if you have any question then you can ask कि I guess आज ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ it wasn't difficult at all हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का क्या स्टेटस है पूनम मैम
हम सब सेंटर्स में प्रिमिटिव रिफ्लेक्स कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जी मैम, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी या सो वो भी हमारे इधर ਐਡ ऑन ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰਿਫਲੈਕਸਸ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ऑन ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। सारे सेंटर्स में ऐड हो रहा है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। मैम एक बार बट इन ਤੁਸੀਂ द ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿव ਰਿਫਲੈਕसेस हाँ, सारे ऐड ऑन सेंटर्स अपना बता दें। हाँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे कोई क्लास ले लेंगे। 10 हाँ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, है ना? 10 के 10 हम चेक करते हैं बच्चों के सब सारे सेंटर्स। मुझे प्लीज बता दो। एक बारी मैम आंसर कर दो सारे। यस मैम, चेक करते हैं टाइम टू टाइम, फिर ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨया प्लान अपडेट करते हैं। हाँ जी मैम, चल रहा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। फरीदकोट में भी चल रहा है मैम। हाँ जी मैम, चल रहे हैं, ऐड और किए हुए रश्मि रश्मि है आज? रश्मि आपके वहां भी शुरू करा है? मलेरकोटला से नहीं रश्मि। मैम, आई थिंक रश्मि मैम नहीं है, अदिति मैम उनके मोबाइल में कुछ इशू हो रहा है तो मैंने उन्हें अनदर फोन से ज्वाइन करने के लिए कहा है, बट स्टिल शी इज नॉट। संदीप सर, आपको पता है कुछ? संदीप सर तो थे शायद से अभी। संदीप सर। अच्छा सर, अच्छा एक हमने जो लिस्ट भेजी थी ओटी की एक्टिविटीज की, जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट थी जो हम सबने मिलके बनाई है, वो सारी लिस्ट आप लोगों ने सबने देखी है ओटी की एक्टिविटीज की? उसमें हमने सारा डाले थे, ग्रॉस फाइन सबने देख ली है वो लिस्ट? नहीं आई? किसी ने भी नहीं देखी वो लिस्ट? अच्छा, एक का तो हाथ उठा है कि उसने देखी है। बाकी बाकी सबने देखी है लिस्ट? प्लीज अगर आपने नहीं देखी तो ओटी की एक्टिविटीज की लिस्ट आप प्लीज देख लेना, और अगर उसमें कुछ एडिशन हो तो हमें बता देना, हम एडिशन कर देंगे। उसमें सारे टारगेट सब टारगेट्स जो हम असेसमेंट में करते हैं वो उसके हिसाब से है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी है, एडीएल भी है, सारा कुछ है। काइंडली गो थ्रू दैट लिस्ट, वो आई थिंक कोऑर्डिनेटर ग्रुप में है। अगर नहीं होगी तो मुझे पर्सनली आप प्लीज मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू द लिस्ट, द लिंक। ठीक है? ਜੀ ਮੈਮ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੈਮ ਪਲਾਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਮ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਧਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰਸ ਦੀ, ਗ੍ਰॉस ਦੀ। फाइन मोटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹੀ मैम प्लीज सभी रिप्लाई करें, जो ट्रेनर आपसे पूछ रहा है प्लीज सभी एक्टिवली पार्ट लें। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी मैम। ਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੁਣੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 45 ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਸ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ 5 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕੇ ਦੈਨ 4 ਮਿੰਟਸ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ,
ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਨਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਈ ਗੈਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? नो मैम। एक्सक्यूज मी मैम हेलो मैम एम आई ऑडिबल? मैम ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। हेलो एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम। मैम एक्चुअली मेरी साइड तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे सी, मैंने जस्ट हुनी ज्वाइन किया है। प्लीज दस सकते हो किस टॉपिक ते गल हो रही सी? ਜਸਵੀਰ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। मैम आप ना रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। ओके जी ओके। ओके, कैन वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर राउंड? सर थोड़ी आवाज नहीं आ रही। हेलो, कैन वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर राउंड? Yes, sure, Sachin sir. ओके, मुझे ये बताओ कि बच्चा ओटी में आता क्यों है सबसे पहले तो। रिति मैम, कैन वी हैव, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यू आर ऑडिबल। अच्छा मैम, अदिति मैम मेरे से मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ओटी में बच्चा क्यों आता है? ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है? वैसे जनरली पूछा है मैंने तो आपसे। ओटी इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना? तो जब स्पेशली हर कैटेगरी का बच्चा ओटी में इसलिए आता है, लेट्स स्टार्ट विद ऑटिस्टिक किड्स। ओटी इज बेसिकली हमारी 4-5 चीजें जो पेरेंट्स को बहुत अलार्मिंग लगती हैं। सिटिंग नहीं है, हाइपर एक्टिविटी नहीं है, हाइपर एक्टिविटी है, कमांड फॉलोइंग नहीं है, और पेरेंट्स से अनमैनेजेबल हो जाता है। So occupational therapy will help first and foremost is sitting and hyperactivity. इसके बिना कोई भी ना स्पीच वाला काम करा सकता, मैं ऑडिबल? यस यस यस। हाँ, ना स्पीच वाला काम करा सकेगा, ना बिहेवियर वाला काम करा सकेगा। अगर ADHD बच्चा है, सेम प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, हाइपर एक्टिविटी है, इसके लिए भी वो ओटी में आता है। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये सारी बेसिक कमांड है। अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट ये 3-4 चीजें पे कंट्रोल कर लेता है तो ऑटोमेटिकली थिंग्स गेट इजियर फॉर द अदर 2 काउंटरपार्ट्स। Secondly, ADL. ADL is also very important because हम इंटीग्रेशन ऑफ पीयर टू पीयर ग्रुप कहते हैं। कैसे होगा? अगर उसको अपने कपड़े पहनने, ब्रश करने, उसको बेसिक ही नहीं चीजें आ रही हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन टू पीयर ग्रुप होगा कैसे? ब्रश ही नहीं कर रहा, हाथ ही धोना नहीं आ रहा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। दीज आर स्मॉल स्मॉल विक्ट्री हमें लगता है, पर पेरेंट के लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। एंड थर्डली जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो है अगर हम वो सॉल्व नहीं करेंगे, वो नहीं आएगा, वो उसके ट्रेमेंडस रिजल्ट्स हैं उसकी सिटिंग पे, पोस्चर पे, गेट पे, ये सारी चीजें ओटी ने सॉल्व करनी ही करनी है। और एक बहुत वंडरफुल जो हमने चीजें देखी है, हमने यहाँ पे अपने यहाँ राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन इंटीग्रेशन प्रोग्राम शुरू किया है। हमने पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से 3 बच्चों पे शुरू किया, 4 बच्चों पे शुरू किया था, एक बड़ा इरेगुलर हो गया, बाकी 3 पे। उसके 15 दिन की मीटिंग के बाद जब हमने उनके पेरेंट्स से सक्सेस रेट पूछा तो 2 बच्चों ने आउट ऑफ 3, सो यू गेट ऑलमोस्ट मोर 75% ने हमें बताया कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है उसकी कमांड फॉलोइंग पे और उसकी सिटिंग पे। सो ये सारी चीजें ना ओटी की के क्रेडिट में ही जाएंगी। ग्रेट। सो आई जस्ट वांट टू नो कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन इज अ टारगेट और एक्टिविटी?
No, these are major targets. We have divided it Yes. into so many active subparts, बिल्कुल and those subparts are divided into various activities. यस पता क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे कि ये ओटी में क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज को टारगेट बना के आगे बच्चों को करवा रहे हैं, जो मेजर दिक्कत आ रही है। सो कोऑर्डिनेटर्स हमेशा ओटी का प्लान चेक करें, सो दैट उनको पता हो कि उन्होंने टारगेट पिक किया हुआ है या एक्टिविटी एज अ टारगेट पिक किया हुआ है, तो वो डिफाइन करना पड़ेगा। मैम ने ऑलरेडी प्लान, आपने मैम ऑलरेडी वो जो शीट शेयर की हुई है उसमें प्रॉपर डिफाइंड है कि टारगेट और एक्टिविटीज क्या रहती है, राइट। What is a therapy target if I'll ask to Suman ma'am? गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. हाँ जी सर। मैम क्वेश्चन एक रिपीट मुझे ये बताओ, थेरेपी टारगेट क्या होता है? सर जिसके ऊपर थेरेपिस्ट सारे काम करते हैं अकॉर्डिंग टू दी बेसिक मैनेजमेंट प्लान। तो जैसे हाँ फॉर जी। एग्जांपल पेगबोर्ड है, पेगबोर्ड टारगेट है या फिर इट्स लाइक वी कैन से एक्टिविटी? सर इट्स एक्टिविटी। ठीक है, सो इसके लिए हम टारगेट क्या पिक करेंगे? सर बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन दी पेरेंट्स की क्या कंसर्न्स हैं, उसके बेसिस पे हम टारगेट लेते हैं। जैसे कहते हैं पेरेंट्स की आई कांटेक्ट नहीं है तो वो हम टारगेट ले लेंगे कि इसका आई कांटेक्ट नहीं है। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि कंसंट्रेट प्रॉपर नहीं करते, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हम वो टारगेट ले लेंगे कि ये कंसंट्रेशन का इसका टारगेट है। फिर रेदर देन सर हम उसकी बेसिक एक्टिविटीज कंडक्ट कर देते हैं कि जैसे इसका कंसंट्रेशन पे हम मैग्नेटिक पजल ले लेंगे, बैकबोर्ड ले लेंगे, फुटबॉल्स इन बकेट बास्केट ले लेंगे। सो अगर हम बात करें पेगबोर्ड की, पेगबोर्ड एक एक्टिविटी है, टारगेट क्या है उसका? पेंसिल ग्राफ्स एक टारगेट है, उसके बाद बाइलेटरल कोऑर्डिनेशन एक टारगेट है, मोटर इंटेलिजेंस एक टारगेट है, राइट इदिति मैम, इजंट इट और नॉट? एक सिंपल एक्टिविटी से शुरू किया हमने, क्लियर हो गया? ठीक है, अभी मैम क्वेश्चंस आप पूछेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप इनसे पूछिए आप, अदिति मैम आई वांट यू टू आस्क देम क्वेश्चंस लाइक रिफ्लेक्सेस और सेंसरी में सबसे पहले रिफ्लेक्स क्लियर करवाने चाहिए या सेंसरी क्लियर कराने चाहिए? नहीं, मुझे तो ये आप वाला ही क्वेश्चन का पार्ट 2 पूछना है सबसे, कि हम हाइपर एक्टिविटी को टारगेट ले लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब टारगेट तो हमारी हाइपर एक्टिविटी, आदित्य मैं थोड़ी देर के लिए लेफ्ट कर रही हूँ। हाइपर एक्टिविटी को हम सब टारगेट लेते हैं, ठीक है। वो टारगेट हमारे सबके हिसाब से अचीव कब होता है? हम लिखते हैं ना हाइपर एक्टिविटी एक टारगेट है और उसकी ये एक्टिविटीज हैं। आपको एज ए कोऑर्डिनेटर कब लगता है कि वो हाइपर एक्टिविटी अचीव हो गई है और हम उसको 6 आउट ऑफ 6 दे देते हैं, या 6 में 4 दे देते हैं, या 3 दे देते हैं? उसके 2 पैरामीटर्स कौन से एज पर एवरीबडी, क्योंकि सबके अपने जज करने के तरीके हैं। टेल नरेंद्र सर, आई वांट यू टू आंसर दिस। जी सर, जैसे हाइपर एक्टिविटी पेरेंट्स से आप मिलते हैं सर, ऑडिबल नहीं है। सबसे पहले तो पेरेंट्स का कंसर्न नहीं होता है। ओके जी मैम। हाँ जी मैम, जैसे पेरेंट्स को डेली हम मिलते हैं तो पेरेंट्स से कंसर्न से पता चलता है सर कि घर पे जो पहले 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 भी हमें पेरेंट्स से ही पता चला कि हाइपर होता है घर पे। हम तो यहाँ पे भी बोलते हैं भी नहीं, भी ठीक प्रोनाउंस करवा रहा है बच्चा, तो फिर पेरेंट्स से मीटिंग में ही पता। तो एक पेरेंट फीडबैक तो इम्पोर्टेंट है ही है। और आप लोग कैसे फीडबैक लेते हो, कैसे रियलाइज करते हो कि इसकी हाइपर एक्टिविटी और क्या पैराडिम है? एक तो पेरेंट तो है ही, और मुझे बड़ा रेयरली लगता है कि कोई पेरेंट हमें कहे कि हाइपर एक्टिविटी ठीक हो गई। हमारे पास तो सारे कहते हैं मैम टिक के नहीं बंदा। ये तो नैन्सी मैम आप एक बताओ। हाँ, के नैन्सी मैम, अकॉर्डिंग ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ। आफ्टरनून जी ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ चीज ਨੂੰ एक्सेप्ट जैसे नहीं बच्चे करता की किसी चीटिंग भी आ जाती है मैम। नहीं नहीं नहीं,
हाँ जी मैम, दोबारा बोलिए। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਾਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਈ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਫਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆ। ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਬੱਚਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ weight ਹਨਾ, weight cuff ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਦਈਏ ਤਾਂ। ओके अदिति मैम, सेटिस्फाइड हो आप आंसर से? तो उनको शायद से समझ नहीं आया। देखो, एक तो हम्म। पेरेंट की जजमेंट है, एक आपकी यस, क्लिनिकल जजमेंट भी है बच्चे की। ठीक है, मैं आपको ना केस स्टडी आई एम बताता हूँ। टॉकिंग ऑफ द क्लिनिकल। यस यस, केस स्टडी बताते हैं। 5 साल का बच्चा, उसको एडीएचडी है, ठीक है। उसके असेसमेंट में उसके हमारे को पता लगा कि वो 30 सेकंड के लिए बैठ रहा है, ठीक है। इधर उधर थेरेपी रूम में भाग रहा है, टॉयज इधर उधर फेंक रहा है, और बेसिक जो टॉयज पड़े हैं उसमें अगर पेगबोर्ड है तो पजल भी सॉल्व नहीं कर रहा, उसको भी फेंक रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली उसको इधर उधर फेंक रहा है। तो इसके शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, हम मैम का क्वेश्चन ये है कि वो क्या होंगे, राइट, इजंट इट और नॉट? ठीक है। अब शॉर्ट टर्म गोल में अगर हम पहला गोल का टारगेट करें, तो मुझे ये बताओ कौन आंसर करेगा कि हमारा फर्स्ट गोल क्या होगा? वॉलंटरली अगर कोई आंसर करना चाहे, या मैं नाम लूं? ਫਸਟ सिटिंग। ਫਸਟ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, मैम ਉਹਨੂੰ क्वेश्चन तो वही है रिलैक्स। ना, कंट्रोल करना है, मतलब फर्स्ट टारगेट की होगा। पहले सिटिंग सिटिंग होगा सर, कि हाँ जी, बच्चा सिटिंग सिटिंग। वंडरफुल, सिटिंग हो गया। हाँ, कि बच्चा सिटिंग दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, अच्छे से फोकस्ड है। ठीक है, अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंस ਦੱਸਦਾ। शॉर्ट टर्म गोल ਤੇ लॉन्ग टर्म गोल ਤੇ ਨਿਰਤੀ ਮੈਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ कंट्रोल हो जाएगा हाइपर एक्टिविटी। अगर उसकी सिटिंग टॉलरेंस 5 मिनट हो गई है तो वो कंट्रोल होना शुरू हो चुकी है। लॉन्ग टर्म क्या है, वो क्लास में 15 से 20 मिनट बैठ पा रहा है, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल्ड है, राइट। दूसरा कि वो फॉलो कर रहा है वन स्टेप इंस्ट्रक्शंस इजीली, ठीक है। उसके बाद अगर वो अपना, हमने उसको टेबल पे कोई एक्टिविटी दी है तो वो उसको इजीली कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर वो जो हमने काम दिया वो सारा कंप्लीट करके उठता है, इन बिटवीन वो नहीं उठ रहा, इंपल्सिविटी नहीं है उसमें। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है। लॉन्ग टर्म क्या है कि हमें उसको समहाउ प्रिपेयर करना कि वो क्लासरूम में कहीं बाहर जा रहा है अपनी फैमिलीज के साथ, तो वहां पे 15-20 मिनट टिक के बैठ जाए, तो उसके लॉन्ग टर्म में वो अचीव हो जाएंगे कि उसकी सेल्फ रेगुलेशन है, स्कूल सेटिंग या फिर होम सेटिंग में इंप्रूव होवे अकॉर्डिंग टू द एज। उसके हम टारगेट पिक कर लेंगे कि आज छोटा बच्चा तो हाइपर एक्टिविटी नॉर्मल है, अगर बच्चा 10 साल का है फिर इधर उधर भाग रहा है तो आपको वो ऑकवर्ड लगेगा, राइट। मैम बाकी आप ऐड करना चाहें कुछ? एक किसी ने कहा था ना कि बहुत एग्रेशन होता है, बच्चे बाइट करते हैं, हिट करते हैं थेरेपिस्ट को। ये सब चीजें भी तो एक क्लिनिकल पैरामीटर है। एज अ कोऑर्डिनेटर आपको दिख ही जाता है कि हाइपर एक्टिविटी में एग्रेशन कम हो गई, बैठने लग गया, सुनने लग गया, हिट करता था। एक हमारे पास एक बच्चा आया था, वो उसने आते ही, आई थिंक चारू इज ऑल्सो ऑन अटेंडिंग द सेशन, उसने आते ही हमारे बाल खींचे और लटक गया। ठीक है, उसका काम ही यही था, आता है बाल, थेरेपिस्ट के बाल पुल करो और उसके साथ उसके कर। ये भी तो एक, अगर जब कंट्रोल हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ए गुड क्लिनिकल सक्सेस। सो अगर आप एज अ कोऑर्डिनेटर पेरेंट से ये डिस्कस करते हैं, तो पेरेंट को भी ये कहते हैं ना कि ये सारी चीजें हमने हाइपर एक्टिविटी में अचीव कर ली हैं। सो दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। पेरेंट तो देगा ही देगा, पर हमारी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी हमको पेरेंट को डिस्कस करनी। आई हैड ओनली दिस कंसर्न। Okay, so today we'll close the session. Rest, anything, anyone want to ask anything?
एक तो कल सब प्लीज अपनी एक बार शीट चेक करके आए जो हमारी एक्टिविटी की लिस्ट है, उसमें अगर आपको कोई लगता है कि टारगेट मिस हो गया है, कोई एक्टिविटी मिस हो गई है, वो भी डिस्कस कर लेंगे कल की फॉलो अप क्लास में। और एक केस स्टडी भी हम फ्लोट कर देंगे, ठीक है? एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? I आप think सचिन, आप today's ऐड करना session चाहते हो? was absolutely wonderful. I'm audible. यस यस, यू आर ऑडिबल। ओके सचिन सर, थैंक्स। फाइनली आपने ज्वाइन किया आज हमें, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और मुझे लगता है शायद सभी कोऑर्डिनेटर्स को बड़े हेल्पफुल भी रहे होंगे। आई एम ठीक है। राइट और नॉट? भाई आप लोग जवाब नहीं देते, रिस्पॉन्स यस नहीं मैम, देते, यस वाई? मैम यस। ठीक है, तो सेंटर हेड्स प्लीज डेफिनेटली ज्वाइन करें। आप लोगों की एक्सपर्टाइज ही कोऑर्डिनेटर्स को बहुत हेल्प करने वाली है। मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, हालांकि मेरी ये फील्ड नहीं है, बट मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी काफी नई चीजें सीख रही हूँ। तो प्लीज सभी कोऑर्डिनेटर्स बहुत अच्छे से सपोर्ट करें सेंटर हेड्स को, और आगे बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ इंडिपेंडेंटली सेंटर हेड्स को सपोर्ट करने के लिए। आई वॉन्ट राइट? ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स एक टेस्ट करेंगे जिसमें वो उनको मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूँ कि जो थेरेपिस्ट मिस्टेक्स करते हैं उसकी मेरे को 5 मिस्टेक्स आपने लिखनी है सबने। आई डोंट वांट कि आप एक दूसरे से कॉपी करो। वो जो मिस्टेक्स हैं 5 अपने ग्रुप में डालनी है। सो टुमारो इफ आई एम एबल टू ज्वाइन, कि मैं उसको डिस्कस करूंगा 5 मिस्टेक्स। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो पुराने बच्चे के गोल्स कॉपी कर लेते हैं, हर बच्चा इज डिफरेंट। ठीक है। ऐसे मेरे को 5 मिस्टेक्स चाहिए जो थेरेपिस्ट कर रहा है अपने नीचे ग्राउंड लेवल पे। सो एवरीबडी वांट आई वांट कि वो लिखें, ग्रुप में डालें। लेट्स सी कि हमारे थेरेपिस्ट क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। ओके एवरीबडी। यस सर। यस ऑफ कोर्स। एंड प्लीज जिन्होंने सेशन मिस ओके किया है वो सर। रिकॉर्डिंग आज की सुन के कल के लिए जरूरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। ठीक है ना दीदी मैम? राइट? आज आई थिंक जी काफी सेशन में नहीं थे, तो वो भी रिकॉर्डिंग शेयर करी जाए उनको, और वो भी जरूर पार्टिसिपेट करें कल की एक्टिविटी में सुनने के बाद सेशन को पूरा। ओके, ओके। दैट्स ऑल डन। सो शैल वी लीव? ओके, थैंक यू एवरीवन।